Good morning, students. Yes, all of you are eager to know your maths test marks. Uh, so it is taking time to check the papers because we'll have to check the papers online. So it takes time. So give me a day or two. I'll send your marks in the group. So as I said yesterday that we'll do time sums first, banking time sums, so that the chapter is over completely because you have that chapter coming in your exam. You have that chapter coming in your test. So in the school, they may ask you time sums also. So it won't take much time, 20-25 minutes. We'll solve 2-3 sums. There are hardly 4 or 5 sums in the exercise. So we'll solve 2 or 3 out of them. So open your books to banking chapter. If you have any queries, any doubts, you can send me in the chat box. Okay. So the sums which are based on time are question number 13, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. These are the 4 sums which are based on time. And in miscellaneous also there is one sum which is based on time. So out of these 5 sums, I'll do 3 sums with you. Okay. We'll do 3 sums. You will understand it properly. We'll have to use one formula here. Okay. So come to question number 13.
Question number 13. All of you, yes, be ready. Open your textbooks to exercise. This is the exercise 2 in your textbook. Bank. Okay, so let's write the given data. The question number 13 says, Sonia deposits 300 rupees per month. 300 rupees per month means principal is 300. Okay, at 8%. So the rate is 8%. Okay, rate is 8% and receives 4740 as maturity. So maturity value is 4740. Okay, find out the total time for which the recurring deposit account is held. We have to find the total time. Time means n, and n is always in months. Okay, so again use the same steps. First we will find the interest. Okay, first we will find the interest. So interest is P into n plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. This is the formula, right? Put substitute the values. So 300 into n you don't know. Okay, rate is 8 upon 12 into 2 into 100. Okay, 12 into 2 into 100. Now this zero zeros will cancel. 3 ones are 3 fours are 4 ones are 4 twos are, and 2 will cancel. Okay, so what will remain? What will remain here? Only n into n plus 1 will remain as the interest. बाकी सब कुछ cancel हो गया. Okay, n into n plus 1 has remained. Now I will use maturity value formula. Maturity value is P into n plus I. ठीक है? So what is the maturity value? Maturity value is 4740 equals P into n. P into n मतलब 300. n नहीं पता है, so into n, that is 300n plus n into n plus 1. Understood? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? Any doubt till here? मैंने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया है और फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट किया है. ठीक है? Okay. So now let's open the brackets. 4740 equals 300n plus, let's open this bracket. So this will become n into n square plus n into 1 n. Okay. So ये क्या होगा? 4740 equals ये 300n plus n. 300n plus n. n मतलब ये 1n है, कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है. ओके, तो 300n plus 1n, तो कितना हो जाता है? 301n plus n square. ओके,
sorry students, I got an urgent call. Yes, so we were on this step here. There is some annoying window for me. Let's continue. So I got a question in the chat box here that someone is asking, sir, how did 301 came? 301 कैसे आया? ये 300n और ये 1n इन दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है, ये एक n था और ये 300n था, तो इनको ऐड किया तो आई गॉट 301n plus n square. ओके, सो अब ये आया. अब इसको मैं, ये जो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिल गया है. नाउ दिस इज वन इक्वेशन. आई जस्ट राइट इट प्रॉपरली. कैसे लिखूंगा मैं? इस 4740 को भी मैं राइट हैंड साइड में लिख आता हूँ, 4740 को. ठीक है, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 4740. ओके, ये इक्वेशन बन गया ऐसे. ठीक है, और यहाँ पे जब ये नंबर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0 बचेगा, इक्वल्स टू 0. ओके, आप इस 0 को, है ना, बेटर होता है आप इस 0 को राइट हैंड साइड पे लिखो, दैट इज मोर बेटर. ओके, आपने इस 0 को राइट हैंड साइड में लिखा. ठीक है, नाउ सी द नंबर्स आर वेरी बिग हियर. यही प्रॉब्लम होता है इस सम में. ठीक है, द नंबर्स आर वेरी बिग, तो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. यू हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. यू हैव डन दिस इन फैक्टराइजेशन बिफोर. ओके, हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है. अभी आप इसमें कैसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को? बहुत ही डिफिकल्ट है. अगर आपको स्प्लिटिंग आ गया, जैसे आई कैन सी वन स्टूडेंट ईशान ने सेंट मी द स्प्लिटिंग, मुझे स्प्लिटिंग समझ गया तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, बट अगर नहीं समझा तो हम क्या करेंगे? ओके, स्प्लिटिंग नहीं आ रहा और जनरली नहीं आएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, बिकॉज नंबर्स बहुत बड़े हैं, फैक्टर्स ढूंढना मुश्किल है. तो हम क्या करते हैं? तो हम जो मेथड यूज करते हैं उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला. ओके, द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसके लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n मीन्स द वेरिएबल हियर. अगर वेरिएबल x है तो आप यहाँ पे x लिखोगे. ठीक है, अगर वेरिएबल n है तो आप यहाँ पे n लिखोगे, वॉट एवर इज द अननोन वेरिएबल. ठीक है, फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ व्हाट इज abc? abc क्या है यहाँ पे? तो abc आपको मिलेगा आपके इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से आपको मिलेगा abc. ठीक है, अब abc की वैल्यू क्या होती है? तो abc होते हैं कोएफिशिएंट्स. abc आर कोएफिशिएंट्स. व्हाट आर कोएफिशिएंट्स? वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट्स. ओके, द नंबर अलोंग विद द वेरिएबल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स. सो सी हियर, यहाँ पे n स्क्वायर के साथ क्या नंबर है? कुछ भी नंबर नहीं है. कुछ भी नंबर नहीं है मतलब नंबर है 1. दिस इज 1n स्क्वायर. करेक्ट. n के साथ क्या नंबर है? 301. एंड लास्ट में क्या कांस्टेंट नंबर है? माइनस 4740. ओके, तो ये n स्क्वायर के साथ फर्स्ट जो नंबर होता है दैट इज a. सेकेंड जो n के साथ होता है दैट इज b. एंड जो थर्ड नंबर होता है विथ साइन इज c. साइन हमेशा लेना होता है. अगर यहाँ पे भी माइनस साइन होती, समझो यहाँ पे भी, तो आप माइनस 301 लेते. ओके, साइंस आर इंपॉर्टेंट. सो अंडरस्टूड, a की वैल्यू है 1, b is 301 एंड c इज माइनस 4740. ओके, अंडरस्टूड. इक्वेशन बनाया और इक्वेशन बनाने के बाद हमने a, b और c की वैल्यू लिखी है यहाँ पे. ठीक है, यस नेत्रा, एनी डाउट? यस सर, वापस आप कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया आपको? सर मुझे फॉर्मूला की यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है. मतलब ये फॉर्मूला लिखा है मैंने. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है. ओके, अब ये जो इक्वेशन मिला है, ये जो इक्वेशन मिला था,
आपको आवाज आ रही है क्या? आप म्यूट हो गए। एक मिनट जरा अनम्यूट रहो और सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सी यस सर। ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? ये लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने फाइंड किया इसको, ये नहीं। डेटा यहाँ पे कॉपी किया। हाँ ये स्टेप समझ में आया, ये वाला स्टेप यहाँ पे? हाँ, ये वाला स्टेप समझ में आया। हाँ ठीक है। तो उस स्टेप के बाद मैंने इनको इससे ये फाइंड किया, ये इक्वेशन बन गया इससे, करेक्ट? ये इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन में इसको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है। फॉर्म में मतलब पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर नंबर आता है। जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर, एन और नंबर, ये इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद एक्स स्क्वायर के साथ या एन स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है यहाँ पे, वो नंबर बन जाता है ए, वो होती है ए की वैल्यू। फिर एन के साथ जो नंबर होता है वो बन जाता है बी की वैल्यू। और ये जो लास्ट में नंबर होता है, हर इक्वेशन ऐसे ही होता है। समझो अगर मैंने एक और इक्वेशन लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल 0, ये एक इक्वेशन है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ए हो गया 1, बी हो गया 2 और सी हो गया 5। समझ रहे हैं? ओके सर। हाँ, तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे मुझे सी मिल गया -4740। ओके, नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। ओके, तो ओके कैसे सर। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे? ओके ओके, यस, यू म्यूट योरसेल्फ। तो माइनस, देखो ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 301 प्लस माइनस, मैं बताऊंगा ये प्लस माइनस का भी क्या होगा, वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है? इन द रूट बी स्क्वायर मतलब 301 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है? ए है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। सी क्या है? सी है -4740 अपॉन 2 इंटू ए। ए क्या है? ए इज 1। क्या किया मैंने? वैल्यूज पुट की, ठीक है? नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 301? सो यस, रीनव ने ऑलरेडी बताया स्क्वायर क्या है, 90601। ये है स्क्वायर 301 का, ठीक है? सुन लो, पहले सुन लो, फिर आई गिव यू 2 मिनट्स टू कॉपी। देन ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है? ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस। देन 4 इंटू 4740, व्हाट इज 4 इंटू 4740? टेल मी, 4 इंटू 4740 क्या मिल रहा है? 18900 आ रहा है, करेक्ट? अपॉन 2, 18900 अपॉन 2, नहीं 18900 नहीं है, सही करो कैलकुलेशन, 18960, ठीक है? 18960 है, ओके ओके। सी भूमि, हियर यू आर मल्टीप्लाइंग -4 विथ -4740। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मल्टीप्लाई, आप -4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो -4740 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है? या आपने -4 को -4740 से मल्टीप्लाई किया है मंथन, तो इसलिए माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन डाली, ठीक है? ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, these things are getting multiplied with each other, ओके? ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है? तो अब ये स्टेप पे आ गया हूं मैं, ओके? नाउ आई जस्ट इरेज दिस, थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पे। आई होप इतना तो सिंपल ही था, सबने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है? तो अब व्हाट इज इफ वी ऐड 90601 प्लस 1890 तो मुझे बताओ क्या आएगा ऐड करने के बाद? You will get 109, Sachi, I think you have made a mistake. 109,561 आ रहा है अपॉन 2, 109,561 अपॉन 2,
यस रियान ईशान करेक्ट। ठीक है, सी अभी तक सम में कुछ डिफिकल्ट आया नहीं था। ओके ये फॉर्मूला जरूर आपको लर्न करना पड़ेगा, और ये तो आपको वैसे भी लर्न करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज एंटायर चैप्टर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है पूरा, वो इस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। आगे आएगा चैप्टर नंबर 5, तो वो आप फॉर्मूला तो पढ़ोगे ही। अभी तक आपने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया है, अभी तक आपने सिर्फ इक्वेशन बनाया और इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट किया। ठीक है, अब सिर्फ एक ही ट्रिकी स्टेप आता है इस सम में, दैट इज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अभी आप घर पे बैठ के कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो तो बहुत इजी हो जाएगा ना, लेकिन एग्जाम में हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। ठीक है, तो अभी कैसे फाइंड करें इसका स्क्वायर रूट? ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा कि इसको ऐसे लिखो 10561, फिर एक 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 एक, एक करके नंबर लिखते जाओ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके स्क्वायर रूट ढूंढना थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और मिस्टेक होने की भी चांसेस है। डिवाइड करने में अगर 1 2 की जगह पे 3 लिख दिया तो खत्म, सम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मतलब कि मुझे बताओ, सी दिस इज अ 6 डिजिट नंबर, ये 6 डिजिट का नंबर है। तो 6 डिजिट का नंबर, कितने डिजिट के नंबर को मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे 6 डिजिट का नंबर मिलता है? कितने डिजिट के नंबर को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे 6 डिजिट का नंबर मिलेगा? ये श्रीन और बिलाल प्रिशारित करे नॉर्मल है कि 3 डिजिट के नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 6 डिजिट मिलता है। ठीक है, ओके चलो इतना समझ में आ गया कि 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? 3 डिजिट का नंबर समझो फर्स्ट है 100। ये आपको ओरली माइंड में करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट मेरे माइंड में लिख रहा हूँ। आपको माइंड में सोचना है कि 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो दिस इज ग्रेटर देन 10,000, कोई चांस ही नहीं है 100 होगा। तो थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, 300। 300 का स्क्वायर क्या होगा? करते मत बैठना 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पे 2 जीरोज है तो यहाँ पे 4 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे 90,000। ओके, ये 90,000 से नजदीक है क्या? सी ये 90,000 है और ये है 1 लाख, ऑलमोस्ट 1,09,561। ठीक है, तो है नजदीक है। ओके इट इज नियर, तो 300 से थोड़ा आगे जाना है। ओके तो लेट्स ट्राई 320। 320 देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाना है। ठीक है, ये आपको ट्रायल एंड एरर से करना है। ओके इसमें ऐसा नहीं है, समझो आप 310 भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब आप नंबर को गेस करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब जैसे आपने 320 ट्राई करने का सोचोगे, बट मैं बोलूंगा 320 ट्राई मत करो। क्यों नहीं करो? बिकॉज इस नंबर के लास्ट में क्या है? 1 है। ओके लास्ट में 1 है, तो या तो आप, लास्ट में 1 कैसे आ सकता है? अगर लास्ट में 9 होगा किसी नंबर के तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो लास्ट में 1 आता है। या फिर अगर लास्ट में 1 है किसी नंबर के तो ही उसके लास्ट में 1 आता है। तो या तो 9 या तो 1, तो जो आपका आंसर आने वाला है उसका लास्ट डिजिट या तो 9 होगा या तो 1 होगा, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, 9 या 1 होगा। तो अभी आप कोई भी एक ऐसा नंबर गैस करके देख लेते हैं। चलो तो ट्राई करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ, लेट्स से 321 ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है, तो 321 इंटू 321, तो 1 2 3, देन 2 से करेंगे तो 0 2 4 6 0 0, 3 से करेंगे तो 3 6 9, कितना आ रहा है? 1 4 0 1 3 1 0, मुझे आ रहा है 103041 आ रहा है। ओके 10 मतलब ये कम आ रहा है मुझे, यहाँ पे 9,561 है, मुझे आ रहा है 3041, तो ये कम है। ठीक है, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको बढ़ा देते हैं, इसको ट्राई करते हैं 321 ट्राई करते, सॉरी 331 ट्राई करते हैं। 331, ओके ट्राई 331 स्क्वायर, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 331 स्क्वायर? आप लोग खुद बताओ फाइंड करने के लिए। आ रहा है करेक्ट? 331 का स्क्वायर करोगे तो आपको आ रहा है आंसर करेक्ट? क्या आंसर आ रहा है? 109561। ठीक है, तो आ गया, तो मुझे मिल गया आंसर। अब नाउ सी सी, अगर अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं आपकी जगह पे हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है दिस मेथड इज ऑल्सो लेंथी, ये लेंथी नहीं है। आप इस सेम नंबर को
आप इस सेम नंबर को 109561 को प्राइम फैक्टराइज करके देखो। आप प्राइम फैक्टराइज करके देखो, आपको कितना टाइम लगेगा प्राइम फैक्टराइज करने में। और सेकेंडली आपको नंबर्स भी नहीं मिलेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये डिविजिबल किससे है। ठीक है, डिविजिबिलिटी फाइंड करने में भी मुश्किल होगा, बिकॉज दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबिलिटी ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ऐसा नहीं होगा बैंकिंग में, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए आपको कोई भी नंबर आता है ना एग्जाम में, तो आपको इमीडिएटली अपने दिमाग में सोचना शुरू करना है कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो 6 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट का होगा। अब 300 का दिमाग में ही फाइंड करो, 300 का होता है 90,000। ओके, सो इट इज समथिंग मोर देन 90,000। तो ट्राई विथ 321, ट्राई विथ 331, एक दो नंबर ट्राई करोगे, मैक्सिमम 3 नंबर, तो 3 मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा मैक्सिमम, बट आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा सम कंप्लीट हो चुका है, मुझे 331 आंसर मिल गया है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, n इज -301 प्लस माइनस ये हो गया 331, ओके, अपॉन 2। ओके, अब ये प्लस और माइनस है। अच्छा, देयर इज अ गुड क्वेश्चन हियर, क्या सर अगर 6 डिजिट का नंबर नहीं है, 5 डिजिट का नंबर है तो क्या है? 5 डिजिट के नंबर के लिए भी 3 डिजिट ही होता है। ओके, ये बात याद रखो। देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सी, अगर 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 2 डिजिट। ठीक है, 6 डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट होता है 3 डिजिट। ओके, अगर 5 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर, तो उसका भी स्क्वायर रूट 3 डिजिट ही होता है। ओके, तो 3 डिजिट से ही 5 भी बनता है, 6 भी बनता है। ओके, अगर आप 4 डिजिट की बात करें, 4 डिजिट, तो 4 डिजिट से ही 7 डिजिट का भी होगा एंड 8 डिजिट का भी होगा, ऐसा होता है। ओके, अगर 5 डिजिट के नंबर को स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 9 डिजिट नंबर ऑल्सो एंड यू विल गेट 10 डिजिट नंबर ऑल्सो, ऐसा होता है। 2 डिजिट के नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो 3 डिजिट का भी स्क्वायर आएगा और 4 डिजिट का भी आएगा, ऐसे होता है। दोनों साथ में चलते हैं, 3 4 साथ में, 5 6 साथ में, 7 8 साथ में, 9 10 साथ में, ऐसा होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू आवर सम। सो यहाँ पे -301 प्लस माइनस, अभी आप सोच रहे हो कि प्लस माइनस है, दो दो साइन है, तो कौन सी साइन ले, तो आपको दोनों साइन लेनी है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। ठीक है, तो अभी इस स्टेप पे ये सम स्प्लिट हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, दो बार लिखेंगे इसको, n इक्वल्स -301 प्लस 331 अपॉन 2, और n इक्वल्स -301 -331 अपॉन 2। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 30 अपॉन 2, दैट इज n इज 15, एंड दिस व्हेन यू सॉल्व हियर, तो ये तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -632 शायद अपॉन 2, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस विल नॉट बी योर आंसर। सो ये आ गया आपको n15, सो योर आंसर इज n इज 15 months। डन। सर जैसे अभी यहाँ पे आपने लिखा है n इज इक्वल्स टू माइनस और n इज इक्वल्स टू -301 -331/2, तो वैसे ही अगर ऐसा सम आ जाएगा तो फिर वैसे ही सॉल्यूशन रीडिंग के लिए हमें वैसा ही लिखना है कि आपने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है? नहीं नहीं नहीं, ये बस ऐसे ही आएगा, ये आपको यहाँ तक लिखना है और आगे नहीं लिखना है, बिकॉज नेगेटिव है तो आगे नहीं लिखना है, दैट्स इट। सो दिस विल बी योर आंसर, n इज 15, जो पॉजिटिव आता है दैट विल बी योर आंसर, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है।
Okay, so just to copy the sum, all of you. स्टार्टिंग का पार्ट तो आपने कॉपी कर ही दिया होगा, आई गेस. यस, दोनों आपको करके दिखाना पड़ता है. ये पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी करके दिखाना पड़ता है. ठीक है, लेंदी तो है ये सम, इसीलिए तो टाइम के सम कुछ तो अलग है ना, इसीलिए तो थोड़ा तो स्टेप्स अलग होगा ही. ठीक है, सी लास्ट एक बार वापस से बताता हूँ मैं. ये n की वैल्यू में यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो मुझे मिला 331. ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन भी है और माइनस साइन भी है, तो मैंने एक बार प्लस साइन को लिया, मतलब -301 प्लस 331 अपॉन 2, और दूसरी बार यहाँ पे माइनस साइन को लिया, -301 माइनस 331 अपॉन 2. एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, और दोनों को सॉल्व किया. तो यहाँ पे n मिल रहा था +15, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू आती है n की. क्या आती? मुझे नेगेटिव वैल्यू आती -316 आती. तो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता n का, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को आंसर लेना है. ओके, यस, सो कॉपीड. शुड आई स्टार्ट द नेक्स्ट सम? Is everyone done? फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप. आधा घंटा तो एक्चुअली हो गया यहीं पे. नेक्स्ट सारे सम सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. बस स्क्वायर रूट लेने का नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी सब स्टेप सेम रहते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है. यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट सम आल्सो. ओके, तो आई जस्ट इरेज दिस नाउ. जिसका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो. Okay, so question number 14. Same steps. So he deposits 500 rupees per month. So principal हो गया 500. Rate is 12%. In a banking and recurring deposit scheme, the bank pays rupees. Maturity value क्या है? 5275. This is the maturity value. Okay. Find the time. सो मैं फर्स्ट पहले इंटरेस्ट फाइंड करूंगा. इंटरेस्ट इज पी. फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है. मैंने अगर कोई सम में नहीं भी लिखा है तो भी यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूला अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएंगे. ठीक है, सो इंटरेस्ट इज पी इंटू n प्लस 1 इंटू आर. ये आर है, ठीक है. तो पी इज 500 इंटू n प्लस 1 इंटू आर इज 12 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. ठीक है, सो नहीं नहीं नहीं, जो आंसर टाइम टाइम का जो आंसर मंथ्स में मिला है उसको इयर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मंथ्स में ही होना चाहिए आंसर. 0 0 कैंसिल. ठीक है, देन क्या बचेगा? 12 कैंसिल हो गया बस. तो 5 n प्लस 1 अपॉन 2 ये बच गया. ठीक है, कोई बात नहीं. लेट्स राइट द फॉर्मूला फॉर मैच्योरिटी वैल्यू. See the habit that I always write P into N together and then I leave some space and then I write I. ठीक है, ऐसा मत लिखो. बहुत लोगों की आदत होती है ऐसा लिखने की, ऐसे लिखने की आदत होती है आपको. तो आप लोग I और N को ऐड कर देते हो. दिस इज वेरी रॉन्ग. ये नहीं, ये गलती नहीं करना है. अभी से हैबिट रखो ऐसे लिखने की. ठीक है, नाउ P इंटू एन क्या होगा? P इंटू एन होगा 500N प्लस I की वैल्यू क्या है? 5N N प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, एंड मेच्योरिटी वैल्यू इज 5275. मेच्योरिटी वैल्यू इज 5275. ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा. ठीक है, तो ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम के लिए. सो आई विल गेट 5275 इक्वल,
500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1000n प्लस 5n n plus 1 upon 2. ठीक है, now this 2 will go here and get multiplied. ठीक है, तो क्या होता है 2 into ये मुझे बताओ, तब तक मैं ये राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ. 1000n plus, I'll open the bracket here, 5n into n, 5n square plus 5n into 1, 5. Yes, Ishan, Tanish, correct. ये आपको मिल गया 2 से मल्टीप्लाई करके 10550. ठीक है, ये 5n है, सॉरी 5n. ओके, अब ये 1000n और ये 5n ऐड हो जाएगा, 1000n और 5n. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5n स्क्वायर प्लस 1005n. ओके, और इस 10500 को भी राइट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, ये हो जाएगा -10550. थाउजेंड के साथ n कैसे आया, ये 500n है ना रीनव, 500n है ये, p into n है ना, ये इक्वल्स टू 0. रीनव नहीं, रीत ने पूछा था, सॉरी रीत. ये देखो, ये रहा n, सब जगह पे है ये n. भूमि, this 2 got multiplied with this number. इस 2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, तब जाके ये 10500 हो गया. करेक्ट रेहान, करेक्ट क्रिश. नाउ इन दिस इक्वेशन हमने ये सीखा है कि इक्वेशन में अगर वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होता है सारे टर्म्स, तो इक्वेशन को रिड्यूस करना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे ऑल दीज 3 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 5. So you have to divide the equation by 5. पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, 0/5, 5n square upon 5, 1005n upon 5 minus 10500 upon 5. या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि 5 कॉमन ले लिया, वो भी एक ही बात होती है. ये ऐसा करना पड़ता है. इक्वेशन अगर सारे नंबर सेम नंबर, सारे टर्म्स सेम नंबर से डिविजिबल है, तो यू मस्ट डिवाइड. ओके, इसको डिवाइड करना चाहिए. सो 0/5 तो 0 ही होता है, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट n स्क्वायर प्लस 5 1 जा 5 2 जा देन 0 5 1 जा, ये आया 201n माइनस 5 2 जा 1 जा 1 जा 0, 2110. ये आ गया मेरा इक्वेशन. माय इक्वेशन इज रेडी. Okay, now can you split the middle term here? Can you split the middle term? ये कॉपी कर लिया है क्या? ये कॉपी कर लो. I'll erase this. हाँ यस यस, इस 0 को राइट में रखो ना, वो ज्यादा बेटर है. मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, यहाँ राइट में रखो, नो प्रॉब्लम. रीत गलत बोल रहे हो. नवीन, 5 से इसलिए डिवाइड करना है, 5 से अगर आप डिवाइड करते हो ना तो इक्वेशन छोटा हो जाता है, और छोटा होने के बाद उसको सॉल्व करना आसान होता है. ऐसा नहीं है कि आपने 5 से डिवाइड नहीं किया और आपने सॉल्व किया तो भी आंसर तो आएगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे. 5 से डिवाइड कर लोगे तो द क्वेश्चन विल बिकम इजी. ठीक है, अब अगर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास फॉर्मूला है. ठीक है, नो 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 बिलाल, ऐसा कुछ नहीं करना होता. ठीक है, तो ये आ गया. तो अब मेरी ए की वैल्यू क्या होगी? ए होगा 1, ठीक है, बी होगा 201 और सी होगा -2110. रयान, रयान चुना वाला, रयान, यस योर स्प्लिटिंग इज करेक्ट.
आपने करेक्ट स्प्लिट किया है। और ये पृथ्वीराज, राइट, इट इज बेटर। ये आ गया। तो अब मैं वापस हमारा जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला को लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 201, रूट बी स्क्वायर होगा 201 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 2110 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, सो माइनस 201 प्लस माइनस, टेल मी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 201 का स्क्वायर क्या होगा पहले वो बताना मुझे। यस सांची, करेक्ट। फोर जीरो 401, करेक्ट, हाँ ये सही है, 40401। ये वापस ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, और 4 इंटू क्या आएगा, ये 8440 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करके बताओ क्या आता है। 48841। ओके, सबको यही आया है 48841। ओके, अब देखो, अब ये 5 डिजिट नंबर आ गया, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर, तो ये भी 3 डिजिट नंबर का ही स्क्वायर होगा। करेक्ट है, 3 डिजिट नंबर का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कौन सा 3 डिजिट नंबर, तो आप दिमाग में सोचना है कि 100 का स्क्वायर है 10,000, तो ये तो 48,000 है। 200 का स्क्वायर क्या होता है, 40,000, बरोबर ना। देखो 200 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 0 0 दो बार आ जाएंगे, 40,000। तो अब ये 40,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, 40,000 से, देखो ये 48,000 है, तो मतलब 200 से ही कुछ आगे होगा। ओके, तो हम क्या ट्राई करेंगे, या तो आप 211 ट्राई करो या 221 ट्राई करो। ठीक है, इससे भी नहीं आएगा तो फिर 209 या 219 ऐसा कुछ ट्राई करना, लास्ट में 1 या लास्ट में 9 रखना। ठीक है, तो पहले 211 ट्राई करके देखते हैं, 211 ट्राई करके देखता हूँ मैं। ठीक है, तो 211 ये आ जाएगा 211 0 211 0 0 422 422 1 2 5 4 4 44521, मतलब मुझे 44,000 आंसर आ रहा है और मेरा 48,000 आंसर है। तो चलो इससे ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इससे ज्यादा लेना पड़ेगा। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 नंबर के गेस में ही आंसर आ जाता है। ठीक है, 44200442 14884 आ गया आंसर, 48841। तो आंसर आ गया -201 प्लस -221 अपॉन 2। अभी आगे आप लोग खुद सॉल्व करो, यू नो हाउ टू डू इट। एक बार प्लस लेते, एक बार माइनस लेते, एक एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक एन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, कंप्लीट द सम। आई थिंक ये इनफ होगा टाइम सम्स के लिए। तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देते, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ये सीरीज आपका आंसर सही है। क्या डाउट है ये सीरीज? अच्छा, सो देर इज ए डिमांड हियर कि इसको स्प्लिट करके सॉल्व करो एक बार क्वेश्चन को। तो स्प्लिट करके सॉल्व करना तो बहुत ही इजी होता, जिसको डायरेक्टली पहले ही स्प्लिटिंग मिल गया है। तो इक्वेशन क्या था मेरा, किसी को पहले का कुछ कॉपी करना है तो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, तो
आपका इक्वेशन क्या था, n स्क्वायर प्लस 201n माइनस 2110 इक्वल 0। अब समझो आपको दिमाग में स्प्लिटिंग, एक्चुअली स्प्लिटिंग इजी था, आना भी चाहिए था। देखो 2110 कैसे मिलेगा, 211 इंटू 10, 211 इंटू 10, ठीक है। एक्चुअली दो रीत जेन है, समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ने सेम नाम रखा है रीत जेन, किसी एक जन कुछ अलग कर दो। तो 2110 इंटू 10, ठीक है। तो आपने स्प्लिट कर दिया इसको, 201 का क्या हो जाएगा, 211n, सॉरी, माइनस 10n माइनस 2110 इक्वल 0। ये मैंने स्प्लिट कर दिया, 201 को स्प्लिट किया, 211 माइनस 10, करेक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ऐड करेंगे तो 201 आएगा। ओके, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, n विल कम कॉमन, सो n प्लस 211 माइनस, यहाँ पे 10 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में 10 कॉमन आएगा, तो आएगा n प्लस 211 इक्वल 0, ठीक है। तो n माइनस 10, n प्लस 211 इक्वल 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 10 इक्वल 0 और n प्लस 211 इक्वल 0। तो n मिला यहाँ पे 10 और यहाँ पे n मिला माइनस 211, तो नेगेटिव नहीं चलेगा। दिस इज योर आंसर। देखो स्प्लिटिंग से बहुत इजी हो जाता है सम, पूरा ये वाला जो स्टेप था इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ रूट नहीं वगैरह, डायरेक्ट आपने कर दिया। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्प्लिटिंग से कर पाओ, बोथ आर करेक्ट, स्प्लिटिंग से करो नहीं करो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। Okay, so I hope everyone has understood the time sums properly. Now you can try two sums on your own. Next दो sums जो है वो थोड़ा खुद से try करना बाद में। In the last class, did I discuss anything about the new chapter? Which new chapter I will start? कुछ डिस्कस किया था? स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल में क्या किया है? क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया? अरे बाप रे,